Welcome to Chemistry Academy by Tanzil sir. Now, student, in today's video lecture, we will try to cover chemical properties of amines. अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है amines. In my last video lectures, we have discussed or we have studied classification of amines, nomenclature of amines, and preparation methods of amines. आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस. नाउ व्हाइल राइटिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस एज वेल एज एरोमेटिक अमाइंस वी विल कंसीडर. ओके, और वो पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल ट्राई टू कवर व्हाट इज अमाइंस. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस. नाउ ये वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक alkylation of amines, that is called as Hoffman exhaustive methylation या alkylation. Now second one is here carbyl amine test. Third one Hoffman elimination reaction. Then Hinsberg's reaction of amines with nitrous acid and acylation of amines. Now this 6 chemical property we will try to cover in today's video lecture, and then we will solve few questions based on this chemical property. So student, let's start our today's first chemical property, that is Hoffman. See here, important concept is there. Hoffman exhaustive alkylation. एक सिंपल कंसेप्ट है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये स्टडी किया है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में. सी आवर पॉइंट इज, क्या पॉइंट है अपना? हॉफमन. ओके, आवर कंसेप्ट इज हॉफमन exhaustive alkylation. Now alkylation means the process in which H is replaced by alkyl group, that is called as alkylation. और वो alkyl group आता from alkyl halide. अब exactly what happened during Hoffman exhaustive alkylation, इसमें होता क्या मालूम है? प्राइमरी अमाइन means RNH2. प्राइमरी अमाइन is heated with excess of alkyl halide. प्राइमरी अमाइन मींस 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन को किससे रिएक्ट करते हैं? इट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड. नाउ योर अल्किल हैलाइड इज Rx. हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड्स में देखे क्या इफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज देयर या एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड इज देयर, उसका इफेक्ट क्या होता है? नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अमाइन, and due to the presence of excess of alkyl halide, reaction will not stop here. Again it react with alkyl halide and it convert into tertiary amine, which react with alkyl halide to form, ये डबल से alkyl halide से react करता और ये बनाता QS, quaternary ammonium salt. ये मैं रिएक्शन में एक्सप्लेन करूंगा क्या बनाता है? quaternary ammonium salt, and this reaction is known as Hoffman exhaustive alkylation reaction. So are you able to write this reaction? क्या लिखेंगे आप लोग Hoffman exhaustive alkylation में क्या when primary amine is heated with excess of alkyl halide, it forms secondary amine along with tertiary and quaternary ammonium salt, and this process is known as Hoffman exhaustive alkylation. Now suppose I am taking here कोई भी एक alkyl halide ले लो and take any one primary amine. Suppose मैंने यहाँ प्राइमरी अमाइन लिया, फॉर एग्जांपल CH3NH2. नाउ CH3NH2 इट इज methyl amine. CH3NH2 it is methyl amine. Now this CH3NH2 react with, अब ये CH3NH2 react कर रहा फॉर एग्जांपल एथिल आयोडाइड से. किससे रिएक्ट कर रहे हैं? इट रिएक्ट विद और इट इज हीटेड विद एथिल आयोडाइड. नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1H from NH2 and I क्या रिमूव हो जाएगा? HI. क्या रिमूव हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट? HI. Now NH2 का H and I, HI is eliminated and this C2H5 directly attached to nitrogen and our product will be CH3 NH then C2H5. क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट?
ethyl methylamine, and this is your 2-degree amine, that is your secondary amine. Reaction stop नहीं होगा. Now this secondary amine, same secondary amine, that is your CH3NH2H5 react with same alkyl halide, that is C2H5I. Now this H and I, again there is elimination of, क्या eliminate हो जाएगा, HI, and this C2H5 directly attached to nitrogen. C2H5 किसको attach करेंगे अपन, nitrogen, means your product will be, आपका product आएगा CH3 and then attach there C2H5 and C2H5 diethylamine, and it is the example of tertiary amine. ये क्या का एग्जांपल हो गया, tertiary amine. Now nitrogen contain lone pair of electron. Nitrogen use its lone pair of electron. So this tertiary amine right here, अब ये जो tertiary amine है, that is your CH3 and C2H5, this tertiary amine react with alkyl halide. अब ये किससे रिएक्ट करेगा, alkyl halide C2H5I. Now nitrogen will use its lone pair of electron. नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा एंड इट विल फॉर्म अ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. क्या बनाएगा ये, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. नाउ सी द क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म इज, दिस वन इज योर CH3 and then attach there C2H5 and this last one is your C2H5. Now quarter मतलब 4 alkyl group attached to nitrogen. Here nitrogen will become, nitrogen पर क्या आ जाएगा, positive charge, and this I come here. Okay, now this is called as a quaternary ammonium salt. Now actually quaternary ammonium salt आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, what is quaternary ammonium salt? Now quaternary ammonium salt, it is the derivative of ammonium chloride, ammonium bromide, ammonium iodide. Now see, this one is your ammonium salt, NH4Cl. Yet take here NH4I. Okay, now it's a derivative, means it is obtained from ammonium salt. And how it is obtained from ammonium salt? So by replacing this hydrogen atom by, अब how many hydrogen atoms are there, 4. तो मैं क्या करूंगा, ये चारों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करूंगा बाय अल्किल ग्रुप और बाय एरिल ग्रुप. सो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ये हो गया आपका QS, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. नाउ दिस क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग H. How many hydrogen atom? 4 hydrogen atom by same or different alkyl group or aryl group, and this is called as your quaternary ammonium salt, and this reaction is known as, ये पूरे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, Hoffman exhaustive alkylation reaction. Are you getting my points? आपको समझ में आ रहा है, एक सिंपल कंसेप्ट है, आप प्रैक्टिस करो इसका. Now primary amine react with alkyl halide to form secondary amine, and due to excess of alkyl halide, right here alkyl halide is in excess. आप लोग यहाँ लिखेंगे alkyl halide, it is in excess. Due to excess of alkyl halide, reaction will not stop up to secondary amine. This secondary amine react with alkyl halide to form tertiary amine, and tertiary amine react with alkyl halide to form quaternary ammonium salt, and quaternary ammonium salt, it is the derivative of ammonium salt obtained by replacing hydrogen atom by alkyl group or by aryl group. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, you can write on nitrogen या कॉम्प्लेक्स पर, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम, and this reaction is known as Hoffman exhaustive alkylation. Now student, second chemical property. Now see here, second chemical property यार बहुत ही important है as per your entrance examination. दो example मैं उसके solve करूंगा. Now first we will see what is Hoffman elimination reaction. See, बहुत ही important concept है. Try to remember. दो example में मैं solve कर रहा हूँ. Now your reaction is Hoffman
एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेट मतलब टू रिमूव। अब व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन? थ्योरेटिकली 1 मार्क्स उसका डिस्क्रिप्शन एंड 1 मार्क्स फॉर योर रिएक्शन। ओके, और फिर एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उसको बताऊंगा ना। एक्चुअली हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या मालूम है? द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को मैं यहां बोल सकता हूं टेट्रा अल्किल। कितने अल्किल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन को? 4 के लिए प्रीफिक्स आता है टेट्रा। सो व्हेन टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, क्या बोले अपन? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब मैं यहां क्या नेम ले रहा हूं? व्हेन टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड इज हीटेड विथ, see here what is Hofmann elimination reaction? So here tetra alkyl, okay, tetra alkyl ammonium halide मतलब quaternary ammonium salt halide is heated with या react with, see here it is react with, किससे अपन उसको रिएक्ट कर रहे हैं? इट इज रिएक्ट विद मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। नाउ मॉइस्ट मतलब वेटेड, गीला, मॉइस्चर रहता है उसमें, एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज AgOH। इट फॉर्म, क्या बनाएगा ये? इट फॉर्म टेट्रा अल्किल अमोनियम, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हैलाइड में कैसे रिप्लेस करूंगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इट फॉर्म टेट्रा अल्किल अमोनियम, ओके, टेट्रा अल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी जो टेट्रा अल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, इसका नेचर क्या रहता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। It is a strong base, and when this tetra alkyl ammonium hydroxide is strongly heated, अब जैसे मैं इसको हीट करूंगा, it undergoes beta elimination, मीनिंग मैं आपको रिएक्शन में बताऊंगा। it undergoes beta elimination reaction to form, ये बनाता है alkene, and this reaction is known as Hofmann elimination reaction. In 2 examples I will try to cover. Okay, so for 1 marks, what is Hofmann elimination reaction? क्या है आपका Hofmann elimination reaction? When tetra alkyl ammonium halide, tetra alkyl ammonium halide मतलब quaternary ammonium salt is react with moist silver hydroxide। complete sentence लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा हूं, moist silver hydroxide, it form tetra alkyl ammonium hydroxide which is crystalline solid, basic in nature, and which is strongly heating convert into, and undergoes beta elimination to form alkene, and this reaction is known as Hofmann elimination reaction. See, I am writing one example. See here. Now CH3, CH2, and then this become CH2, CH3. Then this one is your CH2, CH3. This one is your CH2, CH3. Now this one is your nitrogen. अब नाइट्रोजन को कितने अल्किल ग्रुप अटैच किया हमने? 4, and all 4 अल्किल ग्रुप्स आर सेम। इसको मैं बोलूंगा टेट्रा इथाइल अमोनियम, एंड ब्रैकेट के बाहर अपन सॉल्ट यूज करेंगे। नाउ सपोज दैट सॉल्ट इज आयोडाइड। नाउ कौन सा सॉल्ट यूज कर रहा हूं मैं? आयोडाइड। सो इट इज कॉल्ड एज टेट्रा इथाइल अमोनियम, एंड दिस अमोनिया कैरीज पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। सो टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड, इट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब जब ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को अपन रिएक्ट करेंगे मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, किससे मैं रिएक्ट कर रहा हूं? मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। व्हेन इट इज रिएक्ट विद मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन में क्या होगा? Ag and I a precipitate form, and कौन सा precipitate बनेगा आप लोगों का? AgI with precipitate will form। कौन सा precipitate बनेगा? AgI, मतलब I it is replaced by, कौन रिप्लेस करेगा I को? I it is replaced by
OH and your product will be, this part will remain as it is. सिर्फ I की जगह मैं क्या लिखूंगा, OH. देखो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा. Now this one is your CH3, then CH2, and this part become CH2CH3. This one is your CH2CH3. This one is your CH2CH3. और यहाँ आ गया आप लोगों का nitrogen positive charge, and this I it is replaced by OH minus, and it is called as tetra alkyl ammonium hydroxide. Tetra alkyl ammonium hydroxide. And when this tetra alkyl ammonium hydroxide is heated, अब मैं इसको हीट करूंगा. It is a crystalline solid, is strong, basic in nature. आप लोग क्या करो, इसका जल्दी से वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो. ये पार्ट इसको मैं रफ कर रहा हूं. ओके ओके. नाउ when this tetra alkyl hydroxide is strongly heated, it undergoes beta elimination. See here, what is alpha and what is beta. Now this one is your nitrogen, which is a functional group. In amines, nitrogen act as a constituent elements. So the carbon attached to functional group, this carbon become alpha carbon, and next to alpha this carbon is your beta carbon. जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप को अटैच रहता है उसको मैं कौन सा कार्बन बोलूंगा, अल्फा कार्बन. एंड अल्फा कार्बन का नेक्स्ट कार्बन बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा एंड सो ऑन. बीटा एलिमिनेशन का मतलब रहता है कि ये रिएक्शन में एलिमिनेशन जो होगा वो बीटा कार्बन से होगा. मतलब दिस CH3, दिस CH3, दिस CH3 या दिस CH3, कोई भी एक. ऑल अल्किल ग्रुप्स आर सेम, ऑल अल्किल ग्रुप्स आर इथाइल. कोई भी एक बीटा कार्बन से मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगा. नाउ सपोज वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन, और ये OH व्हाट वी हैव एलिमिनेटेड. क्या एलिमिनेट किया हमने, वाटर मॉलिक्यूल. देखो ये CH3 का H एंड OH मैंने क्या रिमूव किया इधर, वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस CH3 विल कन्वर्ट इनटू CH2. लेकिन जब ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा. नाउ विच बॉन्ड विल ब्रेक, नाइट्रोजन एंड कार्बन. ये बॉन्ड ब्रेक होगा. सो हियर माय प्रोडक्ट विल बी CH2. देखो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH2. नाउ this single bond convert into double bond, and this CH3 it will convert into CH2, and this is called as alkene, and this alkene is known as, कौन सा alkene हो गया आपका ये, ethene. ओके अब मेरे पास में ये पार्ट चले गया, बचा क्या मेरे पास में, नाइट्रोजन और उसको 3 अल्किल ग्रुप्स अटैच है. मतलब माय साइड प्रोडक्ट विल बी, क्या है मेरा साइड प्रोडक्ट, टर्शियरी अमाइन. ओके so this one is your CH2 CH3, this one is your CH2 CH3, this one is your CH2 CH3, and this reaction is known as, ये reaction को अपन कौन सा reaction बोलेंगे, Hoffman elimination reaction. Now this reaction it is known as Hoffman elimination reaction. एक और example में ले लो. Are you getting beta elimination? क्या मीनिंग होता है बीटा एलिमिनेशन का, कि जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव होगा बीटा कार्बन से. जैसे मैंने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, ना ये हाइड्रोजन रिमूव किया, उसने उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया. नाउ दिस सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, अल्फा कार्बन का नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया. माय साइड प्रोडक्ट विल बी टर्शियरी अमाइन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन बोलूंगा इसको मैं, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. एक सिंपल पार्ट है. एक और एग्जांपल में लेता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके अब व्हाइल राइटिंग आप लोग ऐसे फॉर्म में मत लो, आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट टू राइट जाओ एंड देन बॉटम में लो. ओके नाउ होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नाउ वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. सी हियर गाइस, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. एक और एग्जांपल में लेता हूं, बहुत अच्छा कांसेप्ट है यार. व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, एक अच्छा कांसेप्ट है. नाउ ड्यूरिंग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन द हाइड्रोजन एलिमिनेट फ्रॉम बीटा कार्बन. कहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, फ्रॉम बीटा कार्बन. सी
I am writing here next example of Hoffman elimination reaction. See, CH3, CH2, then CH2, and this one is here CH2, CH3, CH2, CH3, and finally CH2, CH3. Now 4 alkyl group attached to nitrogen. This nitrogen carries positive charge and use any halide, that is your I minus, and it is heated with moist silver hydroxide. It is react with, किससे रिएक्ट कर रहा हूं उसको मैं, moist silver hydroxide. अब देखो प्रीवियस एग्जांपल और ये एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, वहां मैंने जो अल्किल ग्रुप यूज किया था चारों भी अल्किल ग्रुप सेम थे, इथाइल थे. नाउ हियर अल्किल ग्रुप्स आर इथाइल, 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 नो डाउट. लेकिन दूसरी तरफ मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, प्रोपेन. मतलब दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है. विच वन विल बी द मेन प्रोडक्ट या करेक्ट प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं. नाउ एज यूजुअल अपन स्टार्ट करेंगे. व्हेन quaternary ammonium salt या tetra alkyl ammonium halide react with moist silver oxide, इसमें क्या हो जाएगा, AgI. this part is eliminate या precipitate. ओके, ये मेरा precipitation हो गया AgI, मतलब I is replaced by OH. ये I को मैं कैसे रिप्लेस करूंगा, OH, and my product will be same. Okay, now see here, मेरा प्रोडक्ट देखो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3, now CH2, then it become CH2, then and this one is here CH2, CH3, then CH2, CH3, and this part is here CH2, CH3. Here nitrogen carries a positive charge, only I, it is replaced by OH, and now this is called as halide is replaced by hydroxide. This is called as tetra alkyl. 4 alkyl group attached to nitrogen. Tetra alkyl ammonium hydroxide. And when this tetra alkyl ammonium hydroxide is strongly heated, अब मैं इसको strongly ज्यादा हीट दे रहा हूं. Now here beta elimination will take place. Beta elimination will take place. Okay. अब जो है दो possibilities है यहाँ पर. Now these two groups are ethyl. ये दो ग्रुप कौन से हैं मेरे, ethyl. One is your propyl. Now in this case this carbon become alpha carbon and this one is your beta. Now this one is your alpha carbon and this one is your beta carbon, no doubt. Okay, ये ethyl. अब इसमें अगर मैंने ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, ओके, सपोज ये बीटा कार्बन से अगर मैंने हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, दिस बॉन्ड विल ब्रेक. ओके, और ये सिंगल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड, एंड वी विल गेट ए प्रोडक्ट. क्या आएगा मेरा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. बाकी का ये पार्ट आ जाएगा ट्राइइथाइल अमाइन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, आर यू गेटिंग. कहां से मैंने हाइड्रोजन एलिमिनेट किया है, ये बीटा कार्बन, दिस सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH2, ये अल्कीन बना, एक प्रोडक्ट. दूसरे प्रोडक्ट में मैं क्या करता, इधर से नहीं, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करता, कोई भी एक इथाइल ग्रुप से, फ्रॉम एनीवन इथाइल ग्रुप, फ्रॉम एनीवन. अब सपोज द हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस बीटा कार्बन. अगर मैंने ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, तो नाउ दिस सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड, एंड हियर दिस बॉन्ड विल ब्रेक. एग्री? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन है अल्फा कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में. मींस हियर माय प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2. आपका साइड प्रोडक्ट जो भी आएगा वो रहने दो. देखो मैं यहाँ दो प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूं, एक्चुअली यहाँ प्रोडक्ट एक ही बनता है, कौन सा बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं. ओके, नाउ डिफरेंट अल्कील ग्रुप्स आर देयर, सो ये अल्कीन बनेगा या ये अल्कीन बनेगा. नाउ व्हिच विल बी द करेक्ट प्रोडक्ट. अब आपका करेक्ट प्रोडक्ट क्या है ना, यहाँ अपन अप्लाई करेंगे सेडसेफ रूल. कौन सा रूल अप्लाई करूंगा मैं, सेडसेफ. और सेडसेफ क्या बोलता, क्या हाइड्रोजन एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन, हाइड्रोजन वो बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा विच इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड.
या ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसके पास में सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, कम। अब अगर मैं ये CH3 देखूंगा तो इसको सिर्फ एक कार्बन अटैच है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर मैं ये CH3 देखूंगा, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, एक पॉइंट लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। दूसरा पॉइंट, ऐसा अल्कीन बनाओ जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो, वो भी मैं आपको बताऊं। नाउ सी, दिस इज योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्कीन। अब इसको कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है, 1, और वो कौन सा है, CH3। अब ये मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है, एक भी नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ना राइट में अल्किल ग्रुप है ना लेफ्ट में अल्किल ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ऐसा अल्कीन जिसके पास में कम से कम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहेगा, अल्किल एरिल ग्रुप अटैच रहेगा, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। तो उसके हिसाब से मेरा मेन प्रोडक्ट क्या आएगा, उसके हिसाब से मेरा मेन प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इधर एक अल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, इधर कहीं भी अल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा है क्या, नहीं। सो दिस एलिमिनेशन इज करेक्ट, ये एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस H एंड OH क्या रिमूव करूंगा मैं, H2O, मतलब यहां जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, सो माय बाय प्रोडक्ट विल बी, मेरा बाय प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो इधर N, ये दो ग्रुप और ये ग्रुप। नाउ दिस वन इज योर N CH2 CH3 CH2 CH3 and this part become CH2 CH2 and CH3. Now this is your tertiary amine और ये हो गया आपका अल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या क्या करने का मतलब, हाइड्रोजन वो कार्बन से रिमूव करने का जो लेस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। अब ये बीटा कार्बन को इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ एक ही कार्बन अटैच है, इधर ये बीटा कार्बन को दो कार्बन अटैच है, इसको अपन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। यहाँ पर दो अल्किल ग्रुप, यहाँ पर एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है। Okay, now this reaction is known as Hoffman elimination reaction. कौन सा रिएक्शन हो गया मेरा ये, Hoffman elimination reaction. Hope you are getting this point. Quaternary ammonium salt, tetra alkyl ammonium halide react with moist silver hydroxide to form tetra alkyl hydroxide, which is crystalline solid, basic in nature, which is strongly heated, undergoes dehydration, removal of water molecule, and it form alkene. अब why this reaction is called beta elimination? अब मैं ये रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन बोलूंगा क्यों, बिकॉज द लिविंग ग्रुप या जो अपन हाइड्रोजन एटम रिमूव कर रहे हैं वो कौन से कार्बन से रिमूव कर रहे हैं, बीटा कार्बन से। हाइड्रोजन एटम मैं कहां से रिमूव कर रहा हूं, बीटा कार्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Okay, now come to the next reaction और बहुत important reaction है, that is कार्बिल अमाइन टेस्ट। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं ले रहा हूं। Now कार्बिल अमाइन टेस्ट या कार्बिल अमाइन रिएक्शन, देखो इधर बहुत अच्छा कंसेप्ट है। Now third chemical property that we are going to begin or we are going to start, that is your कार्बिल अमाइन टेस्ट। ओके, मीनिंग बताता हूं मैं, कार्बिल अमाइन टेस्ट। ओके, देखो एक्चुअली कार्बिल अमाइन टेस्ट, दिस टेस्ट इज ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस। इस नोट डाउन करो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन करेंगे आप लोग, दिस टेस्ट ओनली फॉर आइदर अल्किल और एरिल प्राइमरी अमाइन। खत्म हो गया, 1 डिग्री अमाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद, इसका मैं एंट्रेंस का क्वेश्चन ले रहा हूं। ओके, this test only for alkyl aryl primary amine। अब ये टेस्ट में होता क्या पता है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग कार्बिल अमाइन टेस्ट। इन कार्बिल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइन, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कली। प्राइमरी अमाइन किससे रिएक्ट करता है, क्लोरोफॉर्म इन अल्कली। अब इन अल्कली मींस आइदर NaOH और
KOH and it form a FOUL, फोल इसको बोलते हैं ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है बैड, बैड स्मेल। और वो बैड स्मेल जो कंपाउंड रहता है वो रहता है आप लोगों का अल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड। वो क्या रहता है आपका अल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड। और अल्किल एरिल आइसोसाइनाइड इट इज कॉल्ड एज कार्बिल। अल्किल एरिल आइसोसाइनाइड इसको अपन क्या बोलेंगे कार्बिल। एंड दिस टेस्ट इज नोन एज कार्बिल अमाइन टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट हो गया आप लोगों का कार्बिल अमाइन टेस्ट। याद रहेगा when primary amine aliphatic या aromatic primary amine react with chloroform in alkali it forms offensive smell alkyl या aryl isocyanide। और वो alkyl aryl isocyanide को अपन क्या बोलेंगे कार्बिल। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल अमाइन टेस्ट। मैं दोनों रिएक्शन कवर करता हूं। नाउ सी हियर फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक अमाइन। Suppose I have written here C2H5NH2. Now here chloroform, chloroform is here CHCl3. Chloroform क्या हो गया आप लोगों का CHCl3 in alkali. So you either NaOH और KOH। क्या यूज करूंगा मैं either NaOH और KOH. Now use here 3KOH. अब देखो ये रिएक्शन में क्या हो जाता है। Now this part क्या रिमूव कर रहा हूं मैं 3KCl। एग्री 3KCl। अब 3K जाने के बाद अपने पास में क्या बच रहा है यहाँ पर 3OH। ओके पहला पार्ट मैंने यहाँ रिमूव कर दिया Cl बॉयज Cl। फर्स्ट पार्ट वी हैव एलिमिनेटेड 3KCl। ओके उसके बाद में मेरे पास बच रहा है यहाँ पर 3OH और यहाँ का H2, यहाँ का एक हाइड्रोजन। मतलब ये कितने हाइड्रोजन हो जा रहे हैं आप लोगों के 3। देखो ये H और ये H2, 3 हाइड्रोजन और ये 3OH। अब 3 हाइड्रोजन और 3OH मिलकर ये रिमूव करते हैं 3H2O। क्या रिमूव कर देते हैं लोग 3H2O। ओके सो नाउ दिस पार्ट इज एलिमिनेटेड। ये पार्ट एलिमिनेट हो गया, ये पूरा पार्ट एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास में जो रिमेनिंग पोर्शन है नाउ दिस वन इज C2H5। यहाँ बचा है मेरा नाइट्रोजन और यहाँ बचा है मेरा कार्बन। बाकी सब पार्ट मैंने एलिमिनेट कर दिया। नाउ इसको मैं मिला के रख दूंगा। नाउ दिस वन इज C2H5 C है, ये हो गया आप लोगों का C2H5। ओके उसके बाद में NC इज योर आइसोसाइनाइड। NC क्या रहता है आप लोगों का आइसोसाइनाइड। ना आइसोसाइनाइड NC को बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइड। और NC को कौन सा ग्रुप अटैच है अल्किल, दैट इज योर एथिल। तो इसका नेम हो जाता है एथिल आइसोसाइनाइड। एंड दिस एथिल आइसोसाइनाइड इट इज कॉल्ड एज कार्बिल and which is foul या offensive odor या smell and this reaction is known as कौन सा रिएक्शन मैं इसको बोलूंगा कार्बिल अमाइन टेस्ट। Now this is your कार्बिल अमाइन टेस्ट। Use here aromatic amine। आप लोग aromatic amine यूज करो। Suppose I have given C6H5NH2। Now your C6H5NH2 means aniline। C6H5 मतलब benzene ring। This is your aniline। Okay, now this aniline react with chloroform, that is your CHCl3 in alkali either NaOH or KOH. Okay, and try to complete the reaction. करो reaction complete. What happened during this reaction? Now this 3Cl and 3K क्या रिमूव हो जाएगा 3KCl. Now this 2 hydrogen and this 1 hydrogen H2 और H क्या रिमूव हो गया 3 हाइड्रोजन और ये बचा मेरे पास में 3OH। रिमेनिंग पार्ट क्या है मेरे पास में 3OH। क्या रिमूव हो गया 3H2O। लिख दो यहाँ पर। नाउ माय एलिमिनेशन इज 3H2O प्लस 3KCl प्लस 3KCl। अब व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट। अब मेरे पास रिमेनिंग पार्ट क्या है बेंजीन रिंग C6H5 उसके बाद में N और C। नाउ हियर C6H5NC। okay this is called as aryl isocyanide। अब ये substituted benzene को बोलते हैं phenyl, so it is known as
phenyl isocyanide which is carbyl, and this reaction is known as carbyl amine test. ये रिएक्शन कौन सा है मेरा? कार्बिल अमाइन टेस्ट. ओके, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट. दिस वन इज योर कार्बिल अमाइन टेस्ट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अमाइंस आल्सो. आपको क्वेश्चन कैसे देता पता है? 4 ऑप्शन देगा आपको. एक में आपका प्राइमरी अमाइन रहेगा, सेकेंडरी अमाइन रहेगा, टर्शियरी अमाइन रहेगा, ओके, एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. एंड विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर कार्बिल अमाइन टेस्ट? आपको समझ में आ रहा? 1 डिग्री अमाइन देगा NH2, 2 डिग्री अमाइन NH, 3 डिग्री अमाइन N, और एक कोई भी प्रोडक्ट देगा चौथा, क्वाटरनरी बोलो या कोई भी, और पूछेगा विच वन विल बी फेवरेबल फॉर कार्बिल अमाइन टेस्ट. कौन सा रिएजेंट कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा? दैट इज योर प्राइमरी अमाइन, जिसमें NH2 रहेगा. अपन यहां लिखे कार्बिल अमाइन टेस्ट इट इज यूज्ड ओनली फॉर एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. इसके लिए यूज करते हैं उसको एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. सो होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. नाउ पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट. जल्दी ले लो, फिर मैं आगे हिंसबर्ग टेस्ट स्टार्ट करता हूं. पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट. Fast. Pause your video and take screenshot. Okay. Now come to the 4th chemical properties. Boys, अपना next part start करेंगे. Come to 4th chemical property, that is Hinsberg reagent. देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है Hinsberg reagent. एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है Hinsberg reagent. करने का स्टार्ट. Are you with me? Now come to the next point. Hinsberg reagent. अब देखो इसके इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बताता हूं. Now this test is used to distinguish between, boys, this test is used to distinguish between 1 degree amine मतलब प्राइमरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन मतलब सेकेंडरी अमाइन, एंड 3 डिग्री अमाइन मतलब टर्शियरी अमाइन. ये कहां यूज करते हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन. पहले मैं स्टार्ट करता हूं. व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या? व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? एक्चुअली हिंसबर्ग रिएजेंट इज एरिन सल्फोनिल क्लोराइड. व्हाट इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट? आपका हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट इज योर एरिन सल्फोनिल क्लोराइड. एरिन सल्फोनिल क्लोराइड. दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट. अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा आता है. नाउ एरिन बोले तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग. सी हियर, दिस वन इज माय बेंजीन रिंग. सी हियर, ये हो गया मेरा बेंजीन रिंग. Okay, now sulfonil means SO2, that is S double bond O, and attach their Cl. Now it is called as arin sulfonil chloride. याद रखो. अभी बेंजीन रिंग की जगह कभी कभार मुझे C6H5 भी देता है. That is your C6H5SO2Cl. C6H5SO2Cl. एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट्स याद रखो, बेंजीन की जगह मुझे क्या देगा? वो C6H5, S डबल बॉन्ड O की जगह मुझे क्या देगा? SO2. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एरिन सल्फोनिल क्लोराइड, एंड दिस एरिन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट. अब मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, आप लोग मुझे आंसर देंगे. मैं कुछ नहीं करूंगा. पहला मैंने आपको नोट डाउन कराया था कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन. उसके बाद मैंने आपको नोट डाउन कराया व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट. अब अपन बोलते हैं इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन. तो लॉजिकली हाउ इट इज यूजफुल? आप लोग मुझे आंसर देंगे. नाउ स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी अमाइन. करने का स्टार्ट. टेक एनी प्राइमरी अमाइन. सपोज आई एम टेकिंग हियर C2H5NH2 फॉर एग्जाम्पल. क्या यूज किया मैंने? C2H5NH2 प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट. नाउ दिस वन इज माय हिंसबर्ग रिएजेंट. ओके, S डबल बॉन्ड O Cl. हिंसबर्ग रिएजेंट. अब ये रिएक्शन में क्या होता?
NH2 के पास का एक H एंड Cl क्या रिमूव हो जाएगा, HCl. यस, क्या रिमूव हो जाएगा, HCl. मींस इसमें क्या होता है, दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू सल्फर. नाइट्रोजन किसको बॉन्ड करेंगे अपन, सल्फर. दिस पार्ट विल रिमेन एज इट इज, दिस पार्ट विल रिमेन एज इट इज. सो सी माय प्रोडक्ट विल बी, देखो मैं बेंजीन से स्टार्ट करता हूं. मेरा प्रोडक्ट क्या है, नाउ दिस वन इज योर बेंजीन रिंग, this one is here S double bond O double bond O. Only Cl it is replaced by NHC2H5. Cl it is replaced by NH. Okay, अब ये NH को मैं ये फॉर्म में लिख दो, NHC2H5. Are you getting this point? Yes or no? Are you getting this point? This HCl is eliminated. क्या एलिमिनेट हुआ यहाँ से, HCl. अब ये जो पार्ट है NHC2H5, this part is from primary amide and this product is called as N-alkyl. देखो ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अपन, N-alkyl. अब कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, इथाइल, N-ethyl sulfonamide. Yes, the name of product is N-alkyl sulfonamide. अब ये जो N-alkyl sulfonamide बनता, this N-alkyl sulfonamide it is highly soluble. ये जो N-alkyl sulfonamide रहता है, ये क्या रहता है, highly soluble. क्या आप लोग गेस कर सकते हो why it is highly soluble? आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी किया है अल्कोहल में, फेनॉल्स में, अमाइंस में, क्या आप लोगों ने स्टडी. यहाँ क्या होता है कि द नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को क्या अटैच्ड है यहाँ पर, हाइड्रोजन. एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन दिस इज योर एसिडिक इन नेचर. ये हाइड्रोजन रहने की वजह से ये कौन सा नेचर हो जाएगा, एसिडिक. अब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन अटैच मतलब डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा. कौन सा इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन. और अपने अल्कोहल के केस में पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता वो क्या रहता, सॉल्युबल रहता. एंड दैट्स व्हाई प्राइमरी अमाइन का सल्फोनामाइड ये क्या रहेगा, वाटर सॉल्युबल रहेगा ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड टू नाइट्रोजन. नाउ कम टू द सेकेंडरी अमाइन. आ जाओ जरा, मैं आपको लेके जाता हूं सेकेंडरी अमाइन में. टेक एनी सेकेंडरी अमाइन, सपोज C2H5 NHC2H5. Now this secondary amine is given to you. थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ. Now see here, this secondary amine is given to you C2H5 NHC2H5 plus Hinsberg reagent. ये हो गया मेरा Hinsberg reagent. Okay. Now aryl benzene ring SO2 लिखो या S double bond O double bond O Cl लिखो. Now what is the possibilities in this reaction? क्या होगा ये रिएक्शन में, this H and Cl क्या रिमूव हो जाएगा आप लोगों का, HCl. क्या रिमूव हो जाएगा आप लोगों का, HCl. नो डाउट, मतलब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच टू सल्फर. आपका प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग. ओके, बेंजीन रिंग, then sulfone group S double bond O double bond O, ये पार्ट हो गया. then नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा सल्फोन ग्रुप सल्फर से नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को कितने अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, 2. नाउ इट इज कॉल्ड एज, इसका नेम आ जाएगा NN डाइअल्किल. अल्किल ग्रुप इज योर इथाइल. जो दो अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है इसलिए इसको बोलते हैं NN डाइइथाइल सल्फोनामाइड. NN डाइइथाइल सल्फोनामाइड. अब ये NN डाइइथाइल सल्फोनामाइड ये वाटर या अल्कली में सॉल्युबल रहेगा या इनसॉल्युबल रहेगा, ये वाटर या अल्कली में सॉल्युबल रहेगा या इनसॉल्युबल रहेगा. कैन यू जज, आप लोग जज कर सकते हैं. डेफिनेटली इट विल बी इनसॉल्युबल इन अल्कली या वाटर. ये अल्कली या वाटर में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल. व्हाई इट इज इनसॉल्युबल, व्हाई इट इज इनसॉल्युबल, बिकॉज नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन. यस देखो यहाँ हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन को अटैच था, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. एंड एनी कंपाउंड व्हिच शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर वाटर सॉल्युबल. नाउ हियर नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन. That's why this sulfonamide is not acidic and it is insoluble. अब अगर मैंने टर्शियरी अमाइन लिया
3 डिग्री अमाइंस, कोई भी एक 3 डिग्री अमाइंस है, R, N, R, R. Now this 3 degree amine react with Hensberg reagent. Yes, it react with Hensberg reagent. Comments करो comments box में. Yes, comments करो comments box में. Tertiary amine undergoes Hensberg test या it react with arene sulfonyl chloride? No. Comments करो, आपका आंसर comments box में comments करो. Why it does not react with Hensberg reagent? ये Hensberg reagent से react क्यों नहीं करेगा? देखो ना यहाँ पर नाइट्रोजन को कोई भी हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड है क्या? जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, HCl रिमूव किए, यहाँ 1 हाइड्रोजन था, HCl रिमूव किए. Now this test is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. This test is used to distinguish between primary, secondary and tertiary. Primary amine react with Hensberg reagent, benzene sulfonyl chloride to form N-alkyl sulfone amine, which is highly soluble or acidic in nature due to the hydrogen atom attached to nitrogen. But when secondary amine react with Hensberg reagent, no doubt it gives NN dialkyl sulfone amide, but it is insoluble due to no hydrogen atom attached to nitrogen and it is not acidic. And tertiary amine do not react with Hensberg reagent. Tertiary amine do not react with Hensberg reagent. So this is all about the first part of chemical property of amines. ये amines का पहला part होगा chemical property. अब chemical property of amines का जो मेरा second part है, my next video lecture, उसमें मैं cover करूँगा diazotization, reaction with nitrous acid, then reaction with acetyl group, that is acylation of amines, and then electrophilic substitution reaction in amines. ये 4 points मैं discuss करूँगा. Now this is all about, बहुत ही important lecture था boys, बहुत ही important lecture था guys, related to your entrance point of view. जब मैं रिवाइज करूंगा पूरा टॉपिक, उस वक्त मैं नीट के और जेडब्ल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन. जल्दी से पॉज करो वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट. Simultaneously read your NCERT and state board book. Thank you.